الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا لیتنی کنت ترابا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی لا ریب کتاب قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، 30واں پارہ سورۃ نبا کی آخری آیت 40 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب انسان دنیا میں اپنی زندگی گزار لیتا ہے اور گزارتا بھی پھر گناہوں بھری زندگی ہے، غرور و تکبر میں زندگی گزارتا ہے، اس وقت جب پھر اس کی زندگی کا اختتام ہو جائے گا دنیاوی زندگی کا، پھر اس کے پاس عزرائیل علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، موت کا وقت آئے گا، تب اس کے سامنے ہر چیز اس کی آ جائے گی، سارے گناہ اس کے سامنے، سارے پاپ، سارے جرم، سارا کچھ اس کے سامنے آ جائے گا۔ پھر یہ بندہ 9 خواہشیں کرے گا۔ ان 9 خواہشوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا کہ بندہ پھر جو خواہش کرے گا۔ سب سے پہلے تو جب اسرائیل علیہ السلام ایسے بندے کے پاس، گناہگار کے پاس، نافرمان کے پاس، جس نے ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں گزاری، ساری زندگی گناہ نہ چھوڑے، ساری زندگی اپنے رب رحمان کو راضی نہ کیا، نہ کرنے کی کوشش کی، نہ اس نے اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں توبہ کی، بغیر توبہ کیے جب بندہ ایسا بندہ موت کے قریب پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کو یہ ارشاد فرماتا ہے، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، آ گئی موت کی سختی حق کے ساتھ، ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ، یہ ہے وہ جس سے ساری زندگی تو بھاگتا رہا۔ اے انسان کب تک بھاگے گا؟ کب تک تو نافرمانیاں کرتا رہے گا؟ کب تک تو ایسے جیے گا نافرمان بن کے؟ کب تک تو اپنے آپ کو فن خاں سمجھتا رہے گا؟ میرے مسلمان بھائی، آخر کب تک؟ کتنے دن اور کتنے دن اور کتنے سال، کتنے مہینے اور بالآخر موت کی وادی میں جانا ہے، بالآخر موت آنی ہے۔ اس موت کے آنے سے پہلے پھر جو حسرت کرے گا، پھر جو تو آرزویں کرے گا، اس آرزو، اس حسرت سے پہلے آج اپنے خالق و مالک کو راضی کر لے۔ اللہ فرماتا ہے ایسا بندہ جو اکڑ کر چلے گا، نافرمان ہوئے گا، جو ساری زندگی نافرمانی میں گزارے گا، رب فرماتا ہے جب اسرائیل علیہ السلام اس کے پاس آئیں گے اتنی سختی کے ساتھ، اتنی ڈراؤنی صورت میں جب آئیں گے اسرائیل علیہ السلام، پھر اس کا پیشاب بھی نکل جائے گا، اس کے کپڑے بھی خراب ہو جائیں گے، پھر اس کی روح جو ہے جسم سے نکال کر اس کے سینے پر لا کر اٹکا دی جائے گی۔ پھر جب یہ اٹکا دی جائے گی، لوگوں کے لیے یہ ڈراؤنی صورت بن جائے گا، ڈر لگنے لگ جائے گا لوگوں کو، ایسی اس کی آوازیں پیدا ہو جائیں گی، سارے گھر والے، رشتہ دار، دوسرے تیسرے سارے توبہ کریں گے، سارے کہیں گے اللہ اس کو اب اس کی تکلیف دور کر دے، اس کو پردہ دے دے، اس کو پردہ دے دے۔ پھر میرے مسلمان بھائی تب بندہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا۔ پہلی آرزو یہ کرے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، تب جو کہے گا میں مٹی ہوتا۔ آج ہی تو مٹی ہو جانا، آج ہی اپنے آپ کو عاجز کر لے۔ برف سے کسی نے سوال کیا تو ہر وقت ٹھنڈی کیوں رہتی ہے؟ اس نے کہا میں ٹھنڈی کیوں نہ رہوں، میری جب ابتدا بھی پانی ہے، انتہا بھی پانی ہے، تو پھر میں غرور کس بات پہ کروں، گرم کیوں ہو جاؤں؟ میرے مسلمان بھائی، تیری ابتدا بھی مٹی ہے، تیری انتہا بھی مٹی ہے، پھر غرور تیرے اندر کیسے آ گیا؟ پھر کیوں تو غرور کرنے لگ گیا؟
तब ये बंदा कहेगा या लैतनी कुन्तु तुराबा, ए काश मैं मिट्टी होता। इसके सामने सारे इसके अमाल आएंगे, सारा कुछ इसके सामने जब नजरों के सामने आएगा, दूसरी ख्वाहिश ये करेगा। सूरत फजर की आयत नंबर 24 है, 30वां पारा, फरमाया या लैतनी कद्दमतु लिहयाती। तब ये बंदा कहेगा ए काश मैंने अपनी आखिरी जिंदगी के लिए कुछ किया होता। ए मेरे मुसलमान भाई, तब जो तू कहेगा, तब जो तेरी आंखें जनाब फटी की फटी रह जाएंगी, तब तू लोगों के लिए डरावनी शक्ल हो जाएगा। तब ये कहेगा या लैतनी कद्दमतु लिहयाती, काश मैं अपनी आखिरी जिंदगी के लिए कुछ किया होता। आज वक्त है ना, आज उठ जा, आज अपने रब की बारगाह में आ जा, अपने खालिक को मालिक को मना ले। आज तौबा कर ले, अपने मालिक को राजी कर ले। जो भी गुनाह है मेरा अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ कर देगा। अरे मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नम की आग को कोई चीज नहीं बुझा सकती सिवाय एक चीज के। वो कौन सी चीज है? फरमाया अल्लाह के खौफ से निकला हुआ तेरी आंख से आंसू का एक कतरा जहन्नम को बुझा देगा। मेरे मुसलमान भाई, आ तो सही, अपने गुनाह जरा देख तो सही, गौर तो कर, कितने पाप कर बैठा, कितने गुनाह कर बैठा। मेरा खालिक व मालिक फिर भी तुझ पर करम किए हुए है। तीसरी ख्वाहिश बंदा करेगा, सूरत हाका आयत नंबर 25 है। अल्लाह फरमाता है जब ये बंदा इसके सामने नामा आमाल लाया जाएगा, कहेगा या लैतनी लम ओता किताबिया, ए काश मुझे मेरा नामा आमाल न दिया जाता। आज ही अपने नामा आमाल को ठीक कर ले मेरे मुसलमान भाई। फिर जो कहेगा काश ये नामा आमाल मुझे मेरा ना दिया जाता, फिर ये नामा आमाल बाएं हाथ में पकड़ाया जाएगा। फिर बंदा वहां पर कुछ नहीं कर सकेगा, फिर इसको जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। सबके सामने ऐलान करके बताया जाएगा। फिर बदबख्त होगा वो बंदा, फिर उसकी जिल्लत की इंतहा नहीं होगी, उसको जिल्लत के साथ फिर बुलाया जाएगा। बुलाया कि बल्कि फरिश्ते उसको हाँक कर घसीट कर लाएंगे रब की बारगाह में। मेरे मुसलमान भाई देख, उस दिन इतनी जिल्लत कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। आज थोड़ी सी तेरी चौरी साहब की कोई इंसल्ट कर दे तो तू जनाब क्या कुछ नहीं कर देता। फिर उस दिन जो सारी दुनिया के सामने तुझे जलील होना पड़ेगा, उस दिन इतनी जिल्लत कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। चौथी ख्वाहिश करेगा बंदा, जब दुनिया में रहते हुए बुरे दोस्तों के साथ लग के बंदे ने जनाब बुरे काम किए होंगे, बुरी महफिलों में बैठकर बुरी सोहबत इख्तियार करके बंदा खुद बुरा हो गया होगा, तब ये बंदा कहेगा, सूरत फुरकान की आयत नंबर 28 है, अल्लाह फरमाता है चौथी ख्वाहिश या वैलता लैतनी लम अत्तखिज फुलानन खलीला, ए काश मैं फलां को दोस्त ना बनाता, मैं फलां के पास ना बैठता, उसको दोस्त ना बनाता। उसको दोस्त बनाया तो मैं रब की बारगाह से दूर हो गया, गुनाहों की दलदल में चला गया, शराबो जिना में पड़ गया, लोगों के कत्लो गारत में पड़ गया, क्या क्या जुल्म न किए, हर जुल्म में पड़ गया। किस वजह से? बुरी दोस्ती की वजह से। उस दिन बंदा ये कहेगा काश मैंने फलां को दोस्त ना बनाया होता। पांचवी ख्वाहिश बंदा करेगा, सूरत अहजाब आयत नंबर 66 है। पांचवी ख्वाहिश करेगा बंदा, क्योंकि रब रहमान के इसने रास्ते को छोड़ दिया होगा, अल्लाह के प्यारे महबूब की अताअत करना छोड़ दी होगी, तो तब ये गुनाहों की दलदल में गया। तो अब ये बंदा कहेगा या लैतना अतानल्लाह व अतानर रसूला, अल्लाहु अकबर। तब बंदा कहेगा ए काश हमने अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी की होती तो आज हमें जिल्लत का सामना न करना पड़ता, आज सबके सामने जलील ना होना पड़ता। आज बचना है तो आज आजा रब की बारगाह में, अपने सर को झुका ले, अपने गुनाहों से तौबा कर ले मेरे मुसलमान भाई। छठी ख्वाहिश ये बंदा करेगा जब सूरत फुरकान की आयत नंबर 27 है, अल्लाह अकबर, अल्लाह रसूल का रास्ता इसने छोड़ दिया होगा ना, शैतान के पीछे लग गया होगा, तब ये इसके सामने सारा कुछ आएगा। जिन्होंने अल्लाह रसूल का रास्ता अपनाया होगा उनकी क्या शान होगी। तब ये बंदा देखेगा, कहेगा या लैतनी इत्तखज़तु मअर रसूल सबीला,
ऐ काश मैं रसूल का रास्ता अपनाया होता, मैंने अपने प्यारे महबूब का रास्ता अपनाया होता, महबूब की सुन्नतों पर अमल किया होता, महबूब के जो फरामीन है उनको समझा होता, उस पर अमल किया होता, महबूब की आंखों को ठंडक पहुंचाई होती, आज मुझे जिल्लत का सामना न करना पड़ता। सातवीं ख्वाहिश करेगा, उन लोगों को देखेगा जिन लोगों ने अल्लाह रसूल के रास्ते पर जिंदगी गुजारी होगी, अल्लाह रसूल का कहा माना होगा, नमाजें पढ़ते रहे होंगे, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाते रहे होंगे। जब उनकी शान देखेगा ये बंदा, उनको जब देखेगा कि इतने बड़े बड़े ताज पहनाए गए हैं, इतनी इज्जत व वकार के साथ कस्तूरी के पहाड़ों पर इनको बिठाया गया है, इनके कैसे प्यारे तख्त लगाकर इनको बिठाया गया है, कैसी प्यारी नशिस्तें हैं इनकी जिन पर बिठाया गया है, सूरज से भी ज्यादा चमकदार ताज इनके सर पर रखे गए हैं, जिनको देखकर अंबिया भी कहेंगे ए अल्लाह ये कोई तेरे नबी है। अल्लाह फरमाएगा ये नबी नहीं, ये मेरे प्यारे महबूब की उम्मती है, वो उम्मती जो दुनिया में रहते हुए अल्लाह रसूल का कहा मानते होंगे, जो दुनिया में रहते हुए अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं बल्कि शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर करते रहे होंगे। जब इनको देखेगा, सूरत निसा की आयत नंबर 73 है, सातवीं ख्वाहिश बंदा करेगा, या लैतनी कुन्तु माहुम फाफूजा फौजन अजीमा, ए काश मैं भी इनके साथ होता तो आज बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेता। दुनिया में रहते हुए मैं भी इनका साथ लिया होता, मैं भी इनकी तरह नमाजें पढ़ी होती, अपने रब को राजी किया होता, तो आज मुझे भी कामयाबी मिल जाती। फिर तेरा ए काश करना कोई काम नहीं आएगा मेरे मुसलमान भाई। फिर जो बंदा दुनिया में रहते हुए अल्लाह का शरीक किसी को ठहराता होगा, जब ये बंदा देखेगा, सूरत कहफ की आयत नंबर 42 है, फरमाया या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा। आठवीं ख्वाहिश बंदा ये करेगा, ए काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक ना ठहराया होता। ए अल्लाह का शरीक ठहराने वालों, मेरे मुसलमान भाइयों सुन लो जरा, गौर कर लो जरा, कल कयामत के दिन जो ये फिर कहेगा, फिर जो बंदा ये ख्वाहिश करेगा, ए काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक न ठहराया होता। नौवीं ख्वाहिश बंदा करेगा, या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िबु बिआयाति रब्बिना व नकूना मिनल मुमिनीन, सूरत इनाम की आयत नंबर 27 है। फिर ये बंदा कहेगा, ए काश कोई ऐसी सूरत हो कि हम दुनिया में फिर वापस भेजे जाएं और अपने रब की निशानियों को ना जुठलाएं और ईमान लाने वालों में शामिल हो जाएं। ए काश कोई ऐसी सूरत हो जाए, अल्लाह हमें एक बार फिर भेज दे दुनिया में। ना मेरे मुसलमान भाई, फिर मौका नहीं मिलेगा, फिर ख्वाहिश तेरी ऐसे अधूरी की अधूरी रह जाएगी। आज तुझे खालिक व मालिक ने वक्त भी दिया, तंदुरुस्ती भी दी, समझाने वाले भी दिए, तुझे बता रहे हैं, फिर भी तेरे कान पर जूं तक नहीं रेंग रही, फिर भी तू अपने बिस्तर में सोया हुआ है, फिर भी गुनाहों की दलदल में है, फिर भी गफलत में है। फिर कब उठेगा मेरे मुसलमान भाई, कब रब की बारगाह में आएगा? अगर ऐसे ही रहा तो मौत का कोई पता नहीं कब आ जाए फरिश्ता, फिर क्या कर पाएगा? फिर तो सिवाय अफसोस के, कफे अफसोस के और कुछ ना रहेगा। फिर तो यही अफसोस रह जाएगा तुझे। आज आजा, उठ जा, अपने रब की बारगाह में आ जा, आज गुनाहों की दलदल से निकल जा। आह हर लम्हा गुनाह की कसरतो भरमार है, गलबाए शैतान है और नफ्से बद अतवार है, मुजरिमों के वास्ते दोज़ख भी शोला बार है, हर गुनाह कसदन किया इसका भी इकरार है। ए मालिको मौला, हम मानते हैं, हम इकरार करते हैं, हर गुनाह कसदन किया इसका भी इकरार है। हाय नाफरमानियां, बदकारियां, बेबाकियां, हाय नाफरमानियां, बदकारियां, बेबाकियां, आह नामे में गुनाहों की बड़ी भरमार है, छुप के लोगों से गुनाहों का रहा है सिलसिला, तेरे आगे या खुदा, तेरे आगे ए खुदा हर जुर्म का इजहार है, जिंदगी की शाम ढलती जा रही है, हाय नफ्स, जिंदगी की शाम ढलती जा रही है, हाय नफ्स, गरम रोजो शब गुनाहों का ही बस बाजार है,
आजा अब इन गुनाहों के बाजार से निकल जा, जिंदगी की शाम ढल रही है, जिंदगी तेरी खत्म हो रही है मेरे मुसलमान भाई। या खुदा रहमत तेरी हावी है तेरे कहर पर, फजलो रहमत के सहारे जी रहा बदकार है। आजा जितना भी बदकार है, जितना भी गुनाहगार है, उठ के आजा रब की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाएगा, अपने गुनाहों से शर्मिंदा होगा, खालिको मालिक तेरे गुनाह भी माफ फरमा देगा, बल्कि तेरे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देगा। अल्लाह तुझे नेक भी बना देगा, अल्लाह तेरी बख्शिश भी कर देगा। बंदा बदकार हूँ बेहद जलीलो खार हूँ, बंदा बदकार हूँ बेहद जलीलो खार हूँ, मगफिरत फरमा इलाही तू बड़ा गफ्फार है। मौत के झटकों पे झटके आ रहे हैं, अल मदद सख्त बेचैनी के आलम में घिरा बीमार है। ऐ मेरे मुसलमान भाई, अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। आ जाइए, उठ जाइए, गफलत से निकल जाइए। अब गुनाहों के बाजार बहुत गर्म कर लिया, गुनाहों की दलदल में बहुत हम लिबड़ गए। उठ जाइए, खालिक व मालिक की बारगाह में आइए, अपने खालिक को राजी कर लीजिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको नेक काम करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको अपनी नाफरमानी से बचाए, शैतान से दूर रखे, शैतान के शर से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।